US Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been sent to jail. He's been remanded to ED custody till March 28th. But as the Chief Minister remains in prison or in ED custody in this case, his wife Sunita Agarwal today read out his message from jail. In his message through his wife, Kejriwal said that his life is dedicated to the nation and that he will return to fulfill promises made to sisters and mothers of Delhi. But what is hard to miss, that Sunita Agarwal read out the message from the exact same frame which was used by Kejriwal to make media addresses. When we put that frame on air, you will know what we are talking about. The BJP has taken pot shots at AAP's attempt to install a proxy, in their words. Reactions coming in. भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? Let's open this up. Binay Singh, author, political analyst, and Uma Sisodia, leader of the Aam Aadmi Party. Now joining us, Binay Singh, you know, a lot of people are talking about, and let's put that frame on air. This is Mrs. Kejriwal addressing the people of Delhi. But look at the frame. People say, in fact, many in the BJP have said that Aam Aadmi Party has installed a proxy. Yes, Pranesh. So when Mr. Kejriwal got arrested, you know, there was a celebration in major part of the Aam Aadmi Party. The first people who was to celebrate was Bhagwan Singh Maan. आवाज बहुत कम आ रही है. Two of his planes, they were relieved. Two of his government planes, they were hijacked by the Delhi CM. The cavalcade and other facilities, they were hijacked by Kejriwal. So they must be feeling relieved by that. And many leaders in the Delhi circle, Aam Aadmi Party MLA, they were looking for, oh, we have a chance to become the CM. But the thing is that there is something called a Lalu formula. So Lalu formula in this particular situation is that whenever the CM goes to jail, he can put forward his wife's name. So Lalu put forward Rawdi Devi's name. Even she was a housewife. She was not at all, you know, qualified to become a CM. But yes, she became a CM and she ran the state for a long time. So the latter end, you can see that what happened in Jharkhand, Hemant Soren, for time being, due to technical, you know, glitches, he made Champai Soren the CM. But again, his wife is going to contest MLA election and she will take over as CM over here. So the frame which you are mentioning is that simply indicates that who will run the state, proxy or directly whenever it is required. So if directly whenever it will be required, proxy whenever it will be required, Sunita Kejriwal will run, and directly also whenever it will be required. Let's hear from the other side. Mrs. Sisodia, good evening. Thank you for joining us, ma'am. What do you make of first the frame that we are discussing and what Binay Singh just said?
देखिए, सुनीता केजरीवाल जी एक पढ़ी लिखी महिला है और हमारे समाज में जो पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, उसका एक बड़ा ही मतलब महती रोल होता है। अगर आज अरविंद जी वहां पर नहीं है तो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट दिल्ली की जनता को देने के लिए कि चलिए अरविंद जी जेल में है लेकिन आप घबराइए मत, मैं हूं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ। और मैं अरविंद जी का लिखा हुआ जो लेटर है जो उन्होंने जेल से लिखा है उसको मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। तो दिल्ली की जनता को एक कंफर्ट देने के लिए सुनीता केजरीवाल जी ने उस फ्रेम का यूज किया है। तो मैं नहीं समझती कि इसमें उन्होंने कोई अपराध किया। जी दिल्ली उमा की जी, मैं जनता आपसे अरविंद बस एक सवाल जानना चाहता हूं। आपने जो कहा कि पत्नी का एक रोल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम तो सरकार की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये केजरीवाल परिवार की सरकार नहीं है। अगर आपकी बात से पूरे देखिए, उन्होंने कोई भी राजनीतिक बयान वहां से नहीं दिया। उन्होंने सिंपली वो लिखा है जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से उनको जो लेटर दिया है, और उस लेटर को उन्होंने वहां पर बैठकर पढ़ने की कोशिश की, पढ़ा है जनता के सामने कि आप लोग घबराइए मत, अरविंद जी जेल में है, कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों बाद बाहर निकलेंगे, आप उनका भरोसा रखिए। उमा और जी, मैं समझती हूँ कि जी उमा जी, ये बताइए कि अगर सपोज किसी और पार्टी में कोई क्राइसिस हो, और पहले भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं पार्टीज में, तो परिवार का सदस्य एड्रेस करता है कि उस पार्टी में जो नेक्स्ट सीनियर लीडर होता है वो एड्रेस करता है? क्या आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं है, क्या कोई और मंत्री नहीं है जो केजरीवाल साहब के गैर हाजिरी में ये बयान पढ़ देते? देखिए, आम आदमी पार्टी में तमाम बहुत सारे नेता हैं जो ये बयान पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने आपको क्यों कहा, दिल्ली की जनता इस समय व्यथित है। वो केजरीवाल जी से सुनना चाहती है कि वो चले गए हैं जेल, तो अब जनता अपने आप को बहुत असहाय वहां पर फील कर रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को तीसरी बार और बड़े प्रखंड बहुमत के साथ उन्होंने वहां पर उनको बयान दिया। ऐसे में अगर श्रीमती केजरीवाल जी ने आकर उनका बयान पढ़ा, जनता को कंफर्ट करने की कोशिश की, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, आप उनके वर्ड्स देखिए, और वो हमेशा हर रैली में अपने आप को पुत्र, अपने आप को बेटा, और वही शब्द उन्होंने अभी भी यूज किए हैं। ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल जी ने आकर इस लेटर को पढ़ा है तो मैं नहीं समझती कि इस पे किसी तरह की डिबेट का विषय है। किसी तरह की डिबेट का विषय नहीं है ये विनय सिंह जी, आप इसको डिबेट का विषय क्यों बना रहे हैं? नहीं, जैसे अभी उमा जी ने कहा कि ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट देने के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो मैं सहमत नहीं हूं। साइकोलॉजिकल तो है लेकिन कंफर्ट नहीं, ब्लैकमेल है। साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है या साइकोलॉजिकली ठगने का प्रयास किया गया। दूसरा सबसे जो जरूरी बात है कि सीनियर लीडर, आपने कहा प्रणेश की आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद कोई नहीं है क्या? तो सीनियर लीडर एक ही है आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद, वो है केजरीवाल जी की पत्नी। और ये देखिएगा, ये समय आगे आने वाले समय में दिखेगा कि केजरीवाल जी की पत्नी को सीएम ऑफ दिल्ली के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा क्राइसिस आने पर, जैसे कि लालू ने किया, जैसे कि हेमंत सोरेन अभी कर रहे हैं। यही होने वाला है, पूरी मिलाकर एक कहानी है ये। केजरीवाल को अपने किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं है। और दूसरी बात, सारे लोग खुश हैं, सबके मुंह से लार टपक रही है, चाहे भारद्वाज जी हो चाहे आतिशी हो, सबको लग रहा है कि अब हमारा मौका आ गया सीएम बनने का। ठीक है, ऐसे लोगों को दुखी होना पड़ा होगा जब ये इस फ्रेम में मैडम केजरीवाल को लोगों ने देखा होगा। तो उमा जी, परिवार की बात तो ठीक है, लेकिन पार्टी को क्या संदेश जाएगा कि हम भी तो कार्यकर्ता है, हम मेहनत करते हैं, केजरीवाल जी अगर नहीं है, उनके एब्सेंस में हमें मौका क्यों नहीं मिला? जो आपके जो बड़े नेता हैं, गोपाल राय हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं कि मिसेस केजरीवाल को सीएम बना दिया जाएगा। अभी वो जब होगा तब हम उस बारे में डिस्कस वो करेंगे। उस पे तो जा ही नहीं रहे, हम तो बस सिंबलिज्म, परसेप्शन की बात कर रहे हैं। आप ये फ्रेम देखिए, नहीं कर रही है। क्या सुनीता केजरीवाल जी का पार्टी में कोई पद है? केजरीवाल जी के क्या वो नेक्स्ट इन कमांड है? देखिए, वो उनके पास अभी फिलहाल पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन वो केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, और मैंने उसमें बोला है कि उसी नाते उन्होंने केजरीवाल जी के लेटर को जनता के सामने प्रस्तुत किया। नहीं तो वो क्या मैडम सीएम है? उमा जी, उनको मैडम सीएम कहना ठीक होगा? मैडम सीएम, ये शीश महल में भी इसका एक सीएम नहीं है, हम उनको मैडम सीएम नहीं कह सकते, वो मिसेस केजरीवाल हैं, और मिसेस केजरीवाल के रूप में ही उन्होंने जनता को एड्रेस किया। कहीं पर भी मैडम सीएम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ना उन्होंने खुद को मैडम सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया है। विनय सिंह जी, ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है, यू आर रीडिंग टू मच इनटू दिस। नहीं, प्रणेश, राजनीति तो हमको भी समझ में आती है भाई। देखो क्या है कि अगर केजरीवाल किसी को सीएम प्रोजेक्ट करते हैं, किसी और व्यक्ति को, तो एक बात समझ लीजिए कि केजरीवाल विल बी अ लॉस्ट चैप्टर इन हिस्ट्री।
केजरीवाल अगर अपनी पत्नी को सीएम बनाते हैं तो शायद कुछ दिन तक वैसे ही सरवाइव कर जाए, भ्रष्टाचार घोटाले घपले होते रहेंगे जैसे लालू सरवाइव कर गए और जैसे सरवाइव करने का प्रयास यहाँ पे हेमंत सोरेन कर रहे हैं। ये पार्टियां भ्रष्टाचार और परिवारवाद के विरोध में तो आती हैं बात करके, लेकिन जब मौका आता है तो भ्रष्टाचार सबसे पहले करते हैं और परिवारवाद तो सबसे पहले कूद करके करती हैं। ये केवल डायलॉग्स में ठीक है, ये जब एग्जीक्यूशन में आता है तो आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने क्या किया और परिवारवाद के मामले में ये क्या करेंगे। कुछ दिन का ही मामला है और मैडम सिसोदिया इस बात को रिजेक्ट नहीं कर रही, डिनाई नहीं कर रही है कि वो राजनीति में नहीं आएंगी और या फिर वो ये मान रही है कि हाँ मैडम केजरीवाल हैं इसलिए पार्टी में उनका स्ट्रेचर है, इसके बावजूद कि उनके पास कोई पोस्ट नहीं, स्ट्रेचर को कहां डिनाई कर रही है। तो इससे संदेश क्या जाता है उमा जी? आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप भी पार्टी की सदस्य हैं, आपका मन नहीं करता कि अगर आम आदमी की पार्टी है तो आम सदस्य हैं आप पार्टी की, आप भी पढ़ सकती थी? क्या आपसे वो संदेश? बिल्कुल, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे ज्यादा अगर कहीं आलोचना होती है तो उनके पारिवारिक जीवन को लेके होती है कि उन्होंने अपनी पत्नी को इस तरह से किया, उस तरह से किया। बहुत सारे मीम्स बनते हैं, बहुत सारे मजाक बनते हैं। अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी को अपनी जगह उन्होंने अपनी चिट्ठी पढ़ने के लिए भेज दिया तो मैं नहीं समझती। नहीं, एक मिनट उमा जी मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या है इसमें। डिफरेंस जो है ये आपको भी पता है, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूं हमारे जो दर्शक हैं, इसमें डिफरेंस ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के सरनेम की वजह से केजरीवाल नहीं सीएम नहीं है, उनको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है और उनकी पत्नी को कुछ नहीं बनाया है। वो ना ही एमएलए हैं ना ही पार्टी की सदस्य। एक मिनट उमा जी, तो आपने जो ये कंपैरिजन किया प्रधानमंत्री का, वो भी बनती है एमएलए। क्या फिर से मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रही है? अगर मिसेस केजरीवाल राजनीति में होती तो 63 सीट इनका पूरा कुनबा अगर राजनीति में होता तो ये सारे एमएलए होते। आप इस चीज को इतना ज्यादा, मैं नहीं समझती कि इतना ज्यादा बहस का विषय है कि उनकी पत्नी ने आकर चिट्ठी क्यों पढ़ दी। ये कोई इतनी बड़ी बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बहस कीजिए, आप मिस्टर रेड्डी के ऊपर बहस कीजिए जिन्होंने 25 करोड़ का सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाया है। यहाँ पर तो कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं मिले उमा जी? रेड्डी का आप एक बात बताइए, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से इतनी दिक्कत है तो आपने पैसे क्यों लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से? अगर आपको प्रिंसिपली अपोज्ड है आप इस बॉन्ड से, अगर आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी पे खिलवाड़ हुआ है इस बॉन्ड से पैसे लेने में, तो आम आदमी पार्टी को बोलना चाहिए कि हमको नहीं चाहिए पैसे जी, हम तो आम आदमी पार्टी हैं। क्यों नहीं बोला मिस्टर केजरीवाल ने? देखिए, जो रेड्डी जी का जो केस है जिसके ऊपर आप लोगों ने ये लिकर गेट कांड के रूप में इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है, वाटर गेट कांड की तरह, बिल्कुल लिकर गेट कांड आप लोगों ने इसको प्रस्तुत किया है। मैं कह रहा हूँ आप इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बहस कीजिए, उन कंपनीज के ऊपर बहस कीजिए जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। उमा जी उस पर बहस करेंगे, अभी हमारे पास कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, इसीलिए ये विनय सिंह देखिए विश्लेषक है। अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता होता तो उनसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं हम पूछते कि आप कह रहे हैं एक केस में कि उनसे क्यों लिया, आप क्विड प्रो को है कि एक आपको कंपनी पैसा देती है फिर वही अप्रूवर बन जाती है, यही कहना चाह रही हैं आप? तो ये जवाब मैं लेता, लेकिन मैं आपसे लार्जर क्वेश्चन पूछ रहा हूं उमा जी कि आप लोगों ने भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे लिए, वो भी तो नहीं लेना चाहिए अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से दिक्कत है। और जहां तक लिटर गेट की बात है, टाइम्स नाउ के पास एक्सक्लूसिव ये इंफॉर्मेशन है, जो ऑडिट रिपोर्ट है सीएजी की, उसमें लिखा हुआ है 2000 करोड़ का लॉस टू एक्सचेकर। देखिए 2G घोटाला हुआ था, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। 2G घोटाले में भी जेल भी हो गई थी, सब कुछ, और उसके बाद क्या 2G फिर से खुल गया उमा जी, 2G फिर से खुल गया है हाईकोर्ट ने। लेकिन आप बिना आरोप के, बिना आप साक्ष्यों के आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप लोग खाली लोगों को पकड़कर बिना कोई चार्जशीट लगाए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं एजेंसी पे उमा जी, देखिए ये बहुत ही वाजिब सवाल है और ये हक भी है आपका पूछना, लेकिन उसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, इनको अभी तक रिलीफ नहीं मिली है, ये बार बार बेल के लिए अप्लाई करते हैं, कोर्ट बोलती है नहीं देखिए केस बहुत कमजोर है, इनके पक्ष में नहीं है, इसीलिए हम अभी बेल नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने भी, और बड़े बड़े लॉयर्स थे, उन्होंने भी मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में बोला कि इनको बेल दे दिया जाए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ईडी रिमांड दे दिया। देखिए ये जो ईडी वाला जो नया लॉ इन लोगों ने बनाया उसमें तो बेल का प्रावधान ही नहीं है।
आपको बेल का शायद पता प्रावधान नहीं तो होगा। नहीं, बेल का प्रावधान तो है, बट विनय सिंह, द लार्जर पॉइंट दैट शी इज सेइंग that this is a witch hunt against opposition leaders, including Mr. Kejriwal. प्रणेश, आंसर बहुत सिंपल। मिस्टर केजरीवाल का केस हो, हेमंत सोरेन का केस हो, ईडी से रिलेटेड जितने अभी हाई प्रोफाइल केसेस हुए, सीबीआई से रिलेटेड केसेस हुए या इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस हुए, जो अभी कांग्रेस पार्टी के फंड्स का मैटर था, सब में जब अगली पार्टी कोर्ट में रिलीफ के लिए जाती है तो कोर्ट पहला सवाल एजेंसी से पूछता है कि क्यों नहीं सामने वाले को रिलीफ दिया जाए, क्यों सामने वाले को जेल में रहने दिया जाए। और एजेंसीज को, कोर्ट को इस बात को सबूत के साथ कन्विंस करना पड़ता है कि यस, दिस इज द रीजन, ये एविडेंस है और ये एविडेंस आप देख लीजिए और हमको लगता है कि ये प्रेमा फसाई इनफ है ताकि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इनका बाहर रहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि बाहर रहकर ही ये प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको जेल में डाला जाना चाहिए। Okay, let's see, how this case unfolds. Unfortunately, we've run out of time. Binay Singh, Uma Sisodia ji, thank you for joining us on Times Now. Viewers, we're taking a short break.